Good morning. Today our lesson is for class 6. Lesson 6, The Monkey and the Crocodile. Bandar or Magarmach. A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. एक बंदर एक नदी के किनारे एक फलों वाले वृक्ष पर रहता था. He made friends with a crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. उसने मगरमच्छ को अपना मित्र बनाया, उसे स्वादिष्ट फल खाने को दिए और कुछ उसकी पत्नी के लिए भेजे. They met regularly and talked, the monkey in the tree and the crocodile on the ground. वे नियमित रूप से मिलते और बातें करते, बंदर वृक्ष पर तथा मगरमच्छ मैदान पर. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. एक बार एक बंदर एक नदी के किनारे फलों से लदे हुए पेड़ पर रहने के लिए अपना घर बनाया. वह उसमें आनंद पूर्वक से रहता था और जी भर कर अपनी इच्छा के फल खाया करता था. The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. But there was no one around, not even under monkey, till one day a crocodile appeared on the river side. बंदर प्रसन्न था लेकिन अकेला था और बातें करने तथा अपने फलों को बांटकर खाने के लिए किसी साथी को चाहता था, लेकिन आसपास कोई नहीं था, यहाँ तक कि दूसरा बंदर भी नहीं था. तभी एक दिन एक मगरमच्छ उस नदी के किनारे आया. Hello there, said the monkey. Do you live in this river? Would you like to eat some fruit? बंदर ने उसे हेलो कहते हुए पूछा, क्या तुम इसी नदी में रहते हो? क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे? Good morning, replied the crocodile politely. I did come here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me fruit. मगरमच्छ ने विनम्रता से गुड मॉर्निंग कहकर उसका उत्तर दिया, मैं यहाँ अपने तथा अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश में आया था. मुझे फल भेंट करके आपने काफ़ी अच्छा काम किया है. The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. The crocodile found them delicious. Thanks, he said. May I have some on my next visit? बंदर ने नज़दीक की डाली से कुछ फल तोड़कर नीचे फेंक दिया. मगरमच्छ को यह बहुत स्वादिष्ट लगे. उसने धन्यवाद कहा. क्या अब मैं अगली बार यहाँ आऊँगा तब भी कुछ फल मिल जाएंगे? Certainly, as many as you like, and some for your wife too, said the monkey. Do come again, I am rather lonely here. निश्चित तौर पर जितने तुम चाहोगे और कुछ तुम्हारी पत्नी के लिए भी, बंदर ने उत्तर दिया. अगली बार यहाँ अवश्य आना, वास्तव में मैं यहाँ अकेला हूँ. The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruit which his host threw down. He took some home for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends.
They talked and were never tired of talking. They talked about birds and animals, about the villages nearby, and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. मगरमच्छ हमेशा बंदर के पास था जाता था और मेज़बान बंदर के द्वारा फेंके गए फल को खाता था। वह कुछ फल अपनी पत्नी के लिए अपने घर ले जाता था। अब बंदर और मगरमच्छ एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। वे आपस में बातें करते रहते और बातें करने में कभी नहीं थकते थे। वे पक्षियों और पशुओं, नज़दीक के गांवों तथा बारिश की कमी के कारण अच्छी फसल उगाने में गांव वालों के सामने खड़ी परेशानियों के बारे में बातें किया करते थे। The crocodile's wife was annoyed because her husband came home late. मगरमच्छ की पत्नी नाराज़ हो गई क्योंकि उसका पति घर देरी से आया। She didn't like his friendship with the monkey. वह बंदर के साथ उसकी मित्रता पसंद नहीं करती थी। The crocodile couldn't altogether ignore his wife's wishes. मगरमच्छ अपनी पत्नी की इच्छा से पूरी तरह अनभिज्ञ भी नहीं रह सका। One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles, and had just been hatched. She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?" एक दिन मगरमच्छ बंदर के पास अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक रुक गया। उसकी पत्नी उसका देर तक इंतज़ार करने के कारण तथा हाल ही में सोए हुए छोटे मगरमच्छ को संभालने के कारण गुस्साई हुई। उसने पूछा, वह कौन तुम्हारा मित्र है जो तुम्हें इतना पसंद करता है? Oh, he is very nice monkey, he replied. He lives on a fruit tree. He sends fruit for you every day. You don't expect me to climb trees, do you? अरे वह बड़ा प्यारा बंदर है, उसने उत्तर दिया। वह फल वाले एक पेड़ के ऊपर रहता है। वह तुम्हारे लिए रोज़ाना फल भेजता है। क्या तुम मुझसे पेड़ पर चढ़ने की उम्मीद करती हो, है ना? A nice monkey, I am sure, replied the wife with obvious sarcasm. If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much. एक प्यारा बंदर अवश्य, पत्नी व्यंग्य करती हुई बोली। यदि आप मेरी पसंद जानना चाहोगे तो मैं उस बंदर को भोजन बनाना चाहूँगी। मैं उसके दिल को खाना चाहती हूँ। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो, मगरमच्छ चिल्लाया। मैं एक मित्र को नहीं मार सकता, हालांकि स्वाद बदलने के लिए कभी कभी बंदरों को खाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। You bring him here, ordered the wife. I want to see him so you can eat him. Never, declared her husband. पत्नी ने आदेश दिया, आप उसे ले आओ, मैं उसे देना चाहती हूँ। और तुम उसे खा सको, कदापि नहीं, उसके पति ने घोषणा की।
His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving at the little ones to pester their father. उसकी पत्नी क्रुद्ध हो गई और अपने छोटे बच्चों को छोड़कर खुद नदी की तली में जाकर छुप गई ताकि बच्चे अपने पिता को परेशान करें। The crocodile was in a serious dilemma. He loved his wife and was very fond of his friend too. Finally, he decided to be on the side of his wife. She was his life partner after all. I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice. He said to himself, I will invite the monkey home and hope for the best. मगरमच्छ भयानक दुविधा में था। वह अपनी पत्नी से भी प्यार करता था और अपने मित्र को भी एक काफ़ी चाहता था। अंततः उसने अपनी पत्नी का साथ देने का निर्णय लिया। वह उसकी जीवन संगिनी थी। आखिर वह उसकी जीवन संगिनी थी। मैं जानता हूँ कि मित्र को धोखा देना पाप होता है, लेकिन मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने अपने मन में सोचा, मैं बंदर को घर पर आमंत्रित करूँगा और भगवान अच्छा करेंगे। My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. You must come home with me today. प्रिय मित्र, मेरी पत्नी तुम्हें भोजन पर बुलाना चाहती है। मगरमच्छ ने जब अगली बार बंदर के पास गया तो कहा, आज तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना ही होगा। With pleasure, said the monkey. I am no swimmer, but can ride on your back, and they set out. बड़ी खुशी से बंदर ने कहा, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठकर चल सकता हूँ। और वे चल दिए। In the middle of the river, where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. Sorry, my friend, he said hesitatingly, but I have to go under the water now. I have brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. नदी के बीच में जहाँ पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था, मगरमच्छ अपने इरादे को नहीं छुपा सका। उसने झिझकते हुए कहा, सॉरी हे मेरे मित्र, लेकिन मुझे अब पानी के नीचे जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ। तुम्हारा हृदय खाए बगैर मेरी पत्नी जिंदा नहीं रह सकती। अलविदा। The monkey was thunderstruck. He knew his life was in danger. बंदर तड़प उठा। वह जानता था कि उसका जीवन खतरे में था। He kept his cool and persuaded the crocodile on a pretext to swim back to the tree. उसने अपना दिमाग शांत रखा और उसने मगरमच्छ को विश्वास दिलाया और बहाना बनाकर वृक्ष की ओर वापस तैरने को कहा। He decided then to discontinue his friendship with a crocodile. उसने मगरमच्छ से अपनी मित्रता तोड़ने का निर्णय लिया। The monkey was scared and distressed, but he was sensible and clever like all monkeys. He kept a cool head calmly. He said, I'd do anything for you and your family. You are my only friend. After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? But how foolish could you be? Why didn't you tell me before? I have brought my heart along. बंदर भयभीत और दुखी हो गया, लेकिन वह सभी बंदरों की तरह बुद्धिमान और चालाक था। उसने अपने दिमाग को शांत रखा। बड़ी शांति से वह बोला, मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरे एकमात्र मित्र हो। आखिर एक मगरमच्छ की पत्नी के जीवन की तुलना में बंदर के हृदय की क्या कीमत है।
लेकिन तुम कितने बेवकूफ़ हो। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अपना हृदय अपने साथ लेकर आता। But where is your heart? asked the crocodile innocently. I thought you carried it all the time. लेकिन तुम्हारा हृदय कहाँ है? किसी निर्दोष की तरह मगरमच्छ ने पूछा। मैं तो समझता था कि तुम हमेशा उसे अपने साथ रखते हो। Of course not. It's there on the tree. Let's swim back to once and get it. Your wife must be waiting, replied the monkey, gaining confidence. यकीनन नहीं, वह मेरा दिल पेड़ के ऊपर रखा हुआ है। आओ हम लोग शीघ्र तैर कर वापस चलें और उसे ले आएं। तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी, उसे यकीन दिलाते हुए बंदर ने उत्तर दिया। Oh dear, what a mistake, hissed the crocodile. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. अरे प्रिय, क्या गलती हो गई, सिसकी भरते हुए मगरमच्छ बोला। जैसे ही पेड़ के पास आने के लिए वे पीछे की ओर मुड़े तो वे जोर से हंस पड़े। On the river bank, the monkey jumped on to the tree and heaved a deep sigh of relief. He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, Let your wife have some fruit rather than my heart. Fresh fruits are good for mind and body. Goodbye, friend, and if you don't mind, we won't meet again. The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine, and turned back to home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. नदी के किनारे बंदर छलांग लगाकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया तथा उसने राहत की गहरी सांस ली। उसने सबसे नज़दीक वाली टहनी से एक या दो फल तोड़कर और उन्हें नीचे फेंकता हुआ बोला, मेरे हृदय की जगह अपनी पत्नी को फल खाने के लिए दे। ताज़े फल दिमाग और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। अलविदा मित्र, और यदि तुम बुरा नहीं मानो तो आज के बाद हम कभी भी नहीं मिला करेंगे। काफ़ी उदास और बुद्धिमान होते हुए मगरमच्छ ने थोड़े से असली आंसू बहाए। यह जाना जाता है कि मगरमच्छ नकली आंसू बहाया करते हैं और घर जाने के लिए पीछे मुड़ा। उसे अपनी पत्नी को एक या दो बातें बताने की जल्दी थी। ए स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। ये जो कहानी है ये पंचतंत्र की कहानियों में से एक है, ली गई है। जैसे कि आप अब कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, उसी तरह है। जैसे आपने बीरबल की भी कई कहानियाँ सुनी होंगी, इसी तरह रोचक कहानियों में से एक है। तो आप इसको लेसन के साथ रीडिंग करेंगे और फिर उसको सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और कहानी सुनने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। आप अपने छोटे भाई बहनों को भी कहानियाँ सुना सकते हैं। ये सप्लीमेंट्री में जो है 6 to 8 बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। आप उसे पढ़ के अपने छोटे भाई बहनों को भी सुना सकते हैं। तो ये लेसन आपका हो गया है। इससे पहले मैंने आपको इसके वर्ड मीनिंग कराए थे, तो अब मैं इसमें आपको डिफ़िकल्ट वर्ड और दे रही हूँ। बुक में वैसे आपके टिक्स लगे होंगे, पर जिनके पास नहीं है तो मैं आपको कॉपी में लिख के देती हूँ। तो सब उसको करेंगे और 2 टाइम्स 2 बार करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड सब बच्चे। ठीक है, थैंक यू।